ऑलराइट, सो अभी तक जो हमने एक्सप्लोर किया है वो एक्सप्लोर किया है ऑर्डर्स को और प्रोडक्ट्स को। अब हम थोड़ी सी थीम रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि नैव के बारे में भी हमने एक्सप्लोर कर लिया है कि टॉप नेविगेशन को कैसे मॉडिफाई करना है, उसका रीऑर्डर कैसे करना है या चेंज कैसे करना है। ऑलराइट, सो नाउ विल गो अराउंड सम मोर फाइन डिटेल्स लाइक कि आपने स्लाइडर की इमेज को चेंज करना है वो कैसे कर रहे हैं, या छोटी मोटी और चेंजेस करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। दैट विल लाइक आपने स्लाइडर को अपडेट करना है, कोई आपके पास अच्छी क्वालिटी की इमेज आ गया, आप स्लाइडर में अपडेट करना चाह रहे हैं, यू कैन इजीली डू दैट बाय योरसेल्फ। So how you can do that, just go into the admin panel, click on the online store, and there is an option you can see themes. Once you click on the theme, there is another option, click customize. Once you click on this option, you can don't do so many things over here. Just do the things like you are confident about that you can do. For example, this is the option for the slideshow. आप slideshow में कोई image को change करना चाह रहे हैं, just slideshow पे यहाँ पे आपने click करना है, and there are 3 images right now. And आप कोई नई इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, इसका ऑर्डर चेंज करना चाह रहे हैं स्लाइडर का, तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड इफ यू वांट टू ऐड अ न्यू स्लाइड, just click add and upload that slide. All right, so this is how you can change your slide. And इसके बाद यहाँ से आप इसकी रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से यू वांट टू गो विद द फुल हाइट, आपने डू नॉट चेंज दिस, जस्ट गो विद द फुल हाइट। सो फुल हाइट इज दैट system will automatically check what kind of device end user have, so it will like change the aspect ratio for that particular image with respect to that screen size. So full height is good option, you just need to select that. And एक्सक्यूज मी, उसके बाद ये एक ऑप्शन आ रही है नीचे ECDI की। लेट्स से आपने टेस्टिमोनियल चेंज करना है तो आप यहाँ पे आके उसकी इमेज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने इन ऑप्शंस को ज़्यादा चेंज नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू मूव अराउंड, लाइक आपने स्लाइडर चेंज करना है, स्लाइडर पे उसके बाद आपने नैव चेंज करना है, और बेसिक बेसिक छोटी मोटी ऑप्शंस को आप यहाँ से देख लें, जो आप करना चाहें वो कर लें। अदर देन दैट, डोंट यूज दिस फीचर अ लॉट, this will like can disturb your website. So just slideshow को change करना है तो आपने यहाँ से करना है। All right, so this is all about. Sorry, Hammond. I wanted people to be confident that they could change different parts of their theme. Like it's for them then to be able to understand that they can change stuff. It shouldn't be that they shouldn't. Otherwise, they'll have to contact someone like yourself every time they want to upload a photo or change something. So it would be good to maybe do a bit more of a deeper dive into that if we have time. I would like people at the end of it not to have to rely on anyone else but themselves. All right, so we can create what I can do is that create tutorials of small snippets, like how to create a product. I can create tutorial around it. And actually the modification in the theme, it's a bit tricky because it requires some coding skills, so I'm not aware that what kind of coding skill. It's I wouldn't want them to do any coding skills as such. But for example, have you added in things like, okay, I mean, we'll leave this for now, and it'd be nice if you could show them a little bit more, because they can add their icons for their different social medias, all of those sort of things. It would just be good that they know where everything is, I guess, so they can change things around themselves. So for example, if you go down here in the footer, how do they change all of that information and things like that. But I think we'll leave it for now because this is a very intense training, but I would like all of the LSCs to be able to confidently change things around themselves. Yeah. All right. So can everyone create a product on your own store? So just go into your product section after logging into your Shopify account and just create a product. So Ehtisham, how will be I'll be able to see that they're doing good or right, or how we can proceed from here?
I think because so. like For each session, whenever you feel like, you can have a practice session during which you need to give them about 10 to 15 minutes so they can practice hmm, and they can ask their questions whatsoever. all right. So that is up to you whether you want to give four separate practice sessions in one go, or you would like to, do it in modules. I leave it to you. All right. So let me give you username and password so I can see that everyone is doing right. So just log in into this Shopify store. I'm sharing username and password in the chat. I think everyone has logs into their own. They've all got their own login details, don't they? That was what they were meant to have. So for example, I don't want everyone logging into someone else's backend. That's not going to work out for us. I'm sorry, that's a bit dodgy. Basically, you can everyone just confirm on the chat, just write that you are in your. Everyone should have access to their own backend. Is that correct? And people come off mute. If people can come off mute and just tell me, I'm asking the LSCs directly. Do they should have access to their own Shopify stores? Yes, I have. Great. Yes, we have. Perfect. Great. Thank you, everyone, for confirming. Okay, so you're in your own stores at the moment. Would you mind going through and trying to add a product yourself? At the moment, there's a password that's hiding your store physically. So you can do whatever you like on the back end now, and you can try and go in and add one yourself. I think if we give you just 10 minutes to do that, and what you can do. All right. So can everyone see my screen? All right. Okay. तो अभी के लिए मैं आपको ऑप्शन बताने लगा हूँ कि अगर आपके पास एक इमेज है और वो बहुत हैवी है और आपने उसको वेबसाइट फ्रेंडली करना है तो फोटोशॉप से कैसे कर सकते हैं। एक मैंने हैक आपको बता दिया है कि यू कैन डू दैट बाय यूजिंग व्हाट्सएप। अनदर प्रॉपर वे इज दैट यूजिंग फोटोशॉप। सो हाउ टू कंप्रेस योर इमेज साइज इज कि आपने अपनी इमेज को अपलोड कर। Sorry, Hamad, no one would have Photoshop. No one has Photoshop, so there's no point in showing this. No one would have that program. So I mean, most people also are working on PCs, not on Apples, so they will also struggle with that. Probably the better option is, I mean, yeah. Do you know how to resize them otherwise? Yeah. I know how to do it in on a Apple computer, but I don't know how to do it on a PC. So there is another option you can use is that online maybe image just for resizer. this. So you just upload your image over here, resize, and so you can use the image for your products. Like you can go maximum around 2000 pixels. So whatever the aspect ratio is, let's say 2000 1500. So आप जो DSLR से picture capture करते हैं, that might is more than 5000 pixels. So आपकी website के लिए you just need maximum 2000 pixel. That is good enough for your website and every other device your end user is using. So आपने अपने जो image का size है वो 2000 करना है। Photoshop को use करते हुए भी आप कर सकते हैं। आपके पास Photoshop अगर नहीं है तो जो भी आप Photoshop से ज़रा fast हो जाता है और उसमें एक script apply हो जाता है, लेकिन आप online tools available हैं। आप just Google पे करें image resizer ओपन करने के बाद आप अपनी images को अपलोड करें और उसको resize करके डाउनलोड कर लें। तो इसको यूज करते हुए आप इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। सेकेंडली आप यहाँ से आपने जेपीजी सिलेक्ट करना है। जेपीजी की कंप्रेशन ज़्यादा हो जाती है, पीएनजी की कंप्रेशन कम होती है, तो आपने जेपीजी यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी होता है कि नॉर्मल कंप्रेशन करना है, प्रोग्रेसिव कंप्रेशन करना है। तो ये जितना ज़्यादा कंप्रेशन करेंगे उतना ज़्यादा इसका इमेज का वेट कम हो जाता है। तो आपने देखना है कि ऐसी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें आपकी इमेज 1 MB के अंदर आ जाए
और उसकी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो नज़र आ रही है, लुक एंड फील, वो खराब ना हो, वो अच्छी ही रहे, आँखों को पता ना चले कि ये कंप्रेस हो चुकी है। तो आपने इस तरह की कंप्रेशन यूज़ करनी है। तो आप ऑनलाइन कंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। हेलो हमाद भाई, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ हमाद सर, कि मैंने एक चैट में एक लिंक भी सेंड किया है टाइनी पीएनजी के नाम से। वो एक ऑनलाइन टूल है जो कि इमेजेस को कंप्रेस कर देता है अकॉर्डिंग टू वेबसाइट। तो अगर जूम की इसी चैट के अंदर वो मैंने लिंक सेंड किया है, तो उससे भी आप ओपन करके दिखा सकते हैं। थैंक यू। Okay. So this is another website you can use in order to compress your images with respect to website. So ये बड़ी ही सिंपल सी इजी टू यूज वेबसाइट है और दिस इज रिकमेंडेड अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है। एनी अदर क्वेश्चन? फिल्टर्स को यूज करते हुए आप बहुत सारी चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। कस्टमर्स को लाइक आप कस्टमर का रिकॉर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, फ़ोन नंबर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो आप इजीली इन फिल्टर्स को यूज़ करते हुए उनको फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा उनको ईमेल कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों से, वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो कस्टमर मैनेजमेंट आप यहाँ से कर रहे होंगे जिनके ऑर्डर्स आ रहे होंगे। आप देखना चाह रहे हैं इस कस्टमर की डिटेल्स क्या हैं, इनके बारे में कोई आप हिस्ट्री मेंटेन करना चाह रहे हैं कि इस कस्टमर को ब्लैक लिस्ट में डालना है, ये वाला कस्टमर से नहीं आइंदा ऑर्डर आए तो इसको हमने नहीं भेजना है क्योंकि इसके साथ रिटर्न हो जाता है, या कोई इशू भी हो सकता है, या कोई भी आपने उस कस्टमर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी हो, आप कस्टमर नोट्स में मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो कस्टमर क्रिएट भी कर सकते हैं। लेट्स से आपको वही मैंने आपको एक बताया था कि पर्टिकुलर कंडीशन आ जाती है जिसके अंदर इनबॉक्स में आपको मैसेज आ गया, या पर्सनल कैपेसिटी में किसी ने आपको कह दिया है कि मेरा ऑर्डर क्रिएट कर दें। तो ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आपको वो कस्टमर आपके सिस्टम में होना चाहिए। तो आप वो कस्टमर का नाम और उसकी पर्सनल डिटेल्स आप अपने सिस्टम में एंटर कर देंगे, उसका शिपिंग एड्रेस वगैरह वो एंटर करने के बाद जब आप ऑर्डर पे जाके मैन्युअली ऑर्डर क्रिएट करेंगे ना, तो आपको वो कस्टमर इधर से रिकमेंडेशन में आ रहा होगा, अगर पहले से क्रिएट हुआ होगा। ये जिस तरह मैंने अभी 2 कस्टमर्स क्रिएट किए हैं वो आ रहे हैं। इसी तरह नया कस्टमर आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं राइट अवे। तो ऑर्डर क्रिएट करने के दरमियान में ये चीज़ काम में आती है। इसके बाद जो है एनालिटिक्स का पोर्शन है। एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है कि ये आपकी बड़ी ही इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन है और इसकी बेस पे आप अपने बिज़नेस के डिसीजंस ले सकते हैं। इसमें आपको ये पता चल रहा होगा ओवरऑल सेल क्या चल रही है, कि कितनी आपकी सेल्स हो गई हैं, ऑनलाइन स्टोर के सेशन क्या हैं। मतलब आप इससे देख सकते हैं कि किस टाइम पे आपकी वेबसाइट पे लोग ज़्यादा आ रहे हैं, किस दिन पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कितना बाउंस रेट है, यानी कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं और कुछ खरीदे बगैर वापस चले जाते हैं। तो बाउंस रेट क्या आ रहा है, किस टाइम पे आ रहा है। तो इस तरह की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आपको आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के अंदर हेल्प करेगी, आपके बिज़नेस को ग्रो करने के अंदर डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि वो सारी आप आके एनालिटिक्स में ले सकते हैं। और एनालिटिक्स में आपको बेसिक जो जनरल इन्फॉर्मेशन है कि आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है। लेट्स से आपका बिज़नेस डिसीजन है कि आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू ₹1500 आ रही है। अब आप उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं ₹2000 पे, तो कैसे करेंगे? तो आप पहले आपको पता होगा, यू कैन नॉट इम्प्रूव इफ यू कैन नॉट मेजर। तो आपको मेजर करने से पता चलेगा कि मेरी अभी एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी आ रही है जिसको मैंने इंक्रीज़ करना है। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू आप यहाँ से देख लेंगे। इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप देख सकते हैं कि आपकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। आपको आपको पता चला जी आपका जो ट्रैफिक सोर्स है वो लेट्स से फेस इंस्टाग्राम ज़्यादा, आपको ज़्यादा ट्रैफिक इंस्टाग्राम से आ रही है। तो आपने मार्केटिंग पे लेट्स से इन्वेस्ट करना है तो यू कैन गो फॉर इंस्टाग्राम। आपको फिर बाकी प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आप पैसे वेस्ट करेंगे। तो उस पैसे वेस्ट करने को आप बचा सकते हैं कि आपको पता हो कि आपको किधर इन्वेस्ट करना है। तो वो सारी स्टैट्स और वो जो सारे बिज़नेस डिसीजन हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाटा ले सकते हैं, इनसाइट ले सकते हैं, एनालिटिक्स ले सकते हैं, और वो आप अपने डैशबोर्ड में आके एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख लेंगे। फिर क्या होता है कि समटाइम्स आपको कस्टम रिपोर्ट चाहिए होती है कि मेरी सबसे अच्छी प्रोडक्ट कौन-सी सेल हो रही है, मुझे एक रिपोर्ट बना के दें। तो जो भी आपका वेबसाइट मैनेज कर रहा होगा, आप खुद मैनेज कर रहे होंगे, तो आप कस्टम रिपोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह की रिपोर्ट चाहिए, आप कस्टम रिपोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइव व्यू में क्या होता है कि लाइव व्यू में आपको रियल टाइम डाटा मिल रहा होता है। ये बड़ा ही एक्साइटिंग फीचर है शॉपिफाई का लाइव व्यू में, कि अभी आपकी वेबसाइट पे लोग ऑनलाइन है, वो कहाँ-कहाँ से ऑनलाइन है, अभी कितने लोग ऑनलाइन है। तो अभी ये वेबसाइट लाइव नहीं है, इस वजह से इस पे कोई विजिटर नहीं है। जैसे ही आप लेट्स से मैं चैट में लिंक सेंड करता हूँ आपको, और आप ये वेबसाइट विज़िट करें, सारे ओपन करें, तो अभी मुझे यहाँ पे विजिटर नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं।
ये चैट पे ज़रा मैंने लिंक सेंड किया है, सारे ओपन करें ज़रा, मैं देखूँ कि किसी ने लाइव व्यू कैसे काम करता है। तो इस तरह क्या होता है कि वो सारा हमारे पास लाइव व्यू आ रहा होता है कि कितने लोग कहाँ से इस टाइम ऑनलाइन है। जिस तरह अभी ये दुनिया में नज़र आ रहा है कि यहाँ से है, जहाँ-जहाँ से हमारी लोग ऑनलाइन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये भी बड़ा एक्साइटिंग सा फीचर है। ठीक है, तो एनालिटिक्स आपके काम आ जाएँगे। इसके बाद ये अभी किसी ने ओपन किया है, तो एक व्यू काउंट हो गया। अभी एक किसी आप में से किसी ने अभी ऑनलाइन आया, तो राइट अवे मुझे पता चल गया इस टाइम एक विज़िटर मेरी वेबसाइट पे है। सिमिलरली आपकी वेबसाइट पे जितने लोग आ रहे होंगे, इस टाइम कितने हैं, क्या चल रहा है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी एक और ने जॉइन कर लिया तो मुझे 2 हो गए। तो दिस इज़ हाउ लाइव व्यू वर्क्स। ठीक है? अब हम नेक्स्ट सेशन की तरफ जाते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि पेज कैसे क्रिएट करना है। तो अभी तक हमने देख लिया ऑर्डर्स कैसे आते हैं, क्रिएट फ्रंट एंड से कैसे होते हैं, बैक एंड में कैसे नज़र आते हैं। फिर ऑर्डर को हमने शिप कर दिया तो उसके बाद फुलफिल यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है, मार्क एज़ फुलफिल। तो इट मीन्स ये ऑर्डर डन हो गया है और उसके बाद हम उनको फ़िल्टर कर सकते हैं कि यार मुझे सारे अनफुलफिल्ड ऑर्डर दिखा दें जौन से हैं अनपेड, ओपन, क्लोज़ डिफरेंट कैटेगरी वाइज़ आप ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं और देख सकते हैं। इन फ़िल्टर्स को यूज़ करते हुए आप ऑर्डर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी तरह आप देख लें कि जी कुछ ऑर्डर होते हैं जो कि कस्टमर कह देता है जी मेरी तरफ से ये अब मतलब मुझे नहीं चाहिए, कैंसल करना है, तो कैंसल भी आप ऑर्डर को कर सकते हैं। तो ऑर्डर्स को हमने देख लिया, प्रोडक्ट्स को हमने देख लिया कि हमने हमारे पास नई प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, पुरानी प्रोडक्ट्स आप समटाइम्स ऐसे होता है कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है या आपने अब इसको सेल नहीं करना या आप इसको चाह रहे हैं कि अभी मैं इसको लाइव नहीं करना चाह रही, तो आपने इसको एक्टिव से ड्राफ्ट में कर देना है ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आप चाह रहे हैं कि अब इसके ऑर्डर मैं नहीं लेना चाह रही, तो आप इसको ड्राफ्ट में कर देंगे तो आपकी फ्रंट एंड से आना खत्म हो जाएगी वो प्रोडक्ट। तो आप अपने स्टोर से उसे टर्न ऑफ कर देंगे उस प्रोडक्ट को। तो आपको प्रोडक्ट को टर्न ऑफ करने के लिए एक्टिव से ड्राफ्ट में कर देंगे। तो आपको ये वाली चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी डाउन द रोड अपने स्टोर में कि क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स आपकी होंगी जो कि अब अवेलेबल नहीं होंगी या कोई भी सिनेरियो हो सकता है। इसके बाद इसके बाद इन्वेंटरी इन्वेंटरी मैनेजमेंट इट्स अप टू यू कि आप करना चाहते हैं ऑनलाइन कि नहीं। अगर करना चाहते हैं तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसके थ्रू आप अपना स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ये है कि आप ने बताना है कि इसकी कितनी लेट्स से अभी आपके पास पड़ी हुई है 10 पड़ी हुई है सॉरी 20 पड़ी हुई है और 10 इनकमिंग है। इनकमिंग को मैं बाद में बताता हूँ, सबसे पहले अवेलेबल कितनी है 20। तो आप चाहते हैं कि जी आपके पास और स्टॉक आ गया, तो आपके पास 5 प्रोडक्ट्स और आई हैं, तो आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड पे कर देंगे और लेट्स से अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैंने टोटली 5 मेरे पास प्रोडक्ट पड़ी हैं तो आप सेव करेंगे तो टोटल अवेलेबल हो जाएँगी 5। लेकिन अगर आप चाह रही हैं कि मैंने इसमें ऐड करना है, मेरे पास और स्टॉक आया है, तो आप इसमें कहते हैं 10 प्रोडक्ट्स मुझे और आ गई हैं, तो मैंने इसमें ऐड किया तो वो ऐड होगी अवेलेबिलिटी में। तो अपने स्टॉक को आप बड़े स्पीडीली मैनेज कर सकते हैं कि मेरे पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो इन्वेंटरी पे जाके आप मैनेज कर सकते हैं। और जिस तरह हमने प्रोडक्ट ऐड करते वक़्त उसमें एक ऑप्शन देखी थी कि प्रोडक्ट को सेल करते रहना है इवन दो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, ये नहीं करना है। नॉर्मली क्या होता है कि जब प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होती है, तो आप उसका ऑर्डर क्रिएट नहीं कर सकता एंड यूज़र, तो वो फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो ऑटोमैटिकली आप चाहते हैं कि ऑटोमैटिकली आपने एक दफ़ा इन्वेंटरी मेंटेन कर ली है और उसके बाद आप चाहते हैं कि जैसे ही वो आउट ऑफ स्टॉक हो, ऑनलाइन ऑर्डर भी आपको ना क्रिएट हो। तो वो आपने उस ऑप्शन को चेक नहीं करना और बाय डिफ़ॉल्ट वो चेक नहीं होती। तो क्या होगा जैसे ही वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगी, उसके बाद उसका ऑर्डर क्रिएट नहीं होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये प्रोडक्ट्स मेरी आउट ऑफ स्टॉक जा रही हैं, इनकी इन्वेंटरी के ऑर्डर्स मुझे क्रिएट करने हैं। तो उसके सिनेरियो में आप अपना स्टॉक मेंटेनेंस यहाँ से कर सकती हैं। इसी तरह इनकमिंग क्या होता है, इनकमिंग में क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि आपने ऑर्डर क्रिएट कर दिया अपने वेंडर को कि ये प्रोडक्ट्स मुझे भिजवा दे, तो आप उसको कह देते हैं 5 प्रोडक्ट्स मुझे भिजवा दें, लेकिन वो अभी आपके पास रिसीव नहीं हुई। तो अगर उसको आप मैनेज करना चाहते हैं, तो आप वो ट्रांसफर्स के थ्रू मैनेज करते हैं। तो ट्रांसफ़र में आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करेंगे। ये ऐसा ये आपके वेयरहाउस मैनेजमेंट के लिहाज़ से ये फ़ीचर है। इट्स अप टू यू कि आप ये यूज़ करें या ना करें। लेकिन आपको मैं जस्ट बता देता हूँ ये फ़ीचर का फ़ायदा क्या होता है, ताकि अगर आपको लगे कि ये यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है कोई ये वाली अ, तो इस प्रोडक्ट को आप कहती हैं कि जी एक्सपेक्टेड अराइवल इसकी जो है मुझे 1st जैन को ये मुझे मिल जाएगी। आपने कॉल किया अपने वेंडर को और कहा कि ये वाली प्रोडक्ट मुझे लेट्स से 10 ट्रेज़ मुझे भिजवा दें क्योंकि मुझे इसकी डिमांड आ रही है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए।
तो ये मुझे भिजवा दें। तो आपने अपने वेंडर के साथ जो ट्रांसफ़र्स मैनेज करने हैं वो इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो आपने एक्सपेक्टेड अराइवल डेट लिख दी और ओरिजिन बता दिया, लेट्स से आपका वेंडर कराची में है, आपका वेंडर लाहौर में है, आपका जीबी में है। जहाँ पे भी आपका वेंडर है, आप वो अपने सप्लायर की इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर लें, अपना सप्लायर क्रिएट कर लें, तो सप्लायर यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से आपका जो भी सप्लायर था, उसका नाम लिखा, उसका नाम, फ़ोन नंबर। नॉर्मली आपके मेजरली आपके सिनेरियो के अंदर वो ख़वातीन होंगी जो कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स बना रही हैं, आपने उनकी इन्फॉर्मेशन एज़ अ सप्लायर मेंटेन कर लेनी। वो मेंटेन करने के बाद आप बता सकती हैं जी पर्टिकुलर सप्लायर 1 से जो भी एबीसी है उसका, ये सप्लायर 1 आ गया, उसकी इन्फॉर्मेशन आपने सेव कर लेनी है। तो ये वाली प्रोडक्ट इस सप्लायर से आनी है, इतनी क्वांटिटी मैंने एक्सपेक्टेड अराइवल डेट ये है, और एडिशनल आपने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। लेट्स से आपने कुरियर के थ्रू मंगवाया, उसके पास आपका कुरियर की आईडी है, कोई रेफरेंस नंबर है, कोई वो भी आप यहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं अपने रिकॉर्ड के लिए, तो कर सकते हैं। इस तरह सेव ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो आपका ट्रांसफर बन जाएगा। तो होगा क्या, जैसे ही 1 तारीख आएगी, 1st ऑफ जैन होगा, तो ऑटोमैटिकली ये स्टॉक आपके इन्वेंटरी में ऐड हो जाएगा। तो आपको खुद जाके ऐड नहीं करना पड़ेगा। अब ये इनकमिंग है 20 है, इट मीन्स कि आप अपनी इन्वेंटरी में जाके देख सकते हैं कि इसके आपने ऑर्डर क्रिएट किए हुए हैं। ये 20 इनकमिंग है, एक्सपेक्टेड डेट इसकी अभी मैंने सेट की है 1st ऑफ जनवरी, तो ऑटोमैटिकली उस डेट के बाद ये वाला स्टॉक आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह आप अपनी इन्वेंटरी मैनेज कर सकते हैं और ट्रांसफर मैनेज कर सकते हैं। ट्रांसफ़र एक ऑप्शनल है, इट्स अप टू यू, आप यूज़ करना चाहें या ना चाहें, लेकिन आपको मैंने इस ट्यूटोरियल में बता दिया कि ट्रांसफ़र को कैसे यूज़ करना है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट चलते हैं हम ऑनलाइन स्टोर में पेज कैसे क्रिएट करना है। तो इसी तरह ऑनलाइन स्टोर में आप आएँगे और इसमें पेजेस की ऑप्शन है। पेजेस के ऑप्शन को क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपने ऐड पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने पेज का नाम लिखना है। लेट्स से आपने कोई न्यूज़ लॉन्च करनी है, या आपने कोई आपने कोई ट्रेनिंग लॉन्च की है, या कुछ भी इस तरह करके आपने उसका नाम लिख दिया और उस ट्रेनिंग के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अब ये आप जिस तरह वर्ड में टाइप करते हैं, इसी तरह वर्ड में टाइप करके आपके पहले से टाइप हुआ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या आप इधर टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ, उसके ऊपर मैं लिखता हूँ ट्रेनिंग, ये भी मैंने कुछ भी नहीं लिखा, और पेज क्रिएट करने के बाद मैं इसको टॉप नेविगेशन में ऐड कर देता हूँ। ये मेरा पेज क्रिएट हो गया। अब मैं नेविगेशन में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ मैंने इसको अपनी मेन नेविगेशन में ऐड करना है। तो मैं मेन नेविगेशन में जाऊँगा और मैं चाहता हूँ मैं इसको, ये सेल की जगह मैं इसको ऐड करता हूँ ट्रेनिंग को। तो इधर मैं ट्रेनिंग लिख दिया इसका कि ये सामने ट्रेनिंग नज़र आए, और अब ये कौन-सा मैंने पेज बनाया अभी, ट्रेनिंग का बनाया। तो मैं इधर से ट्रेनिंग सर्च करूँगा। ये ट्रेनिंग का पेज आ रहा है, इस पे मैंने क्लिक किया, ऐड कर दिया। ये ट्रेनिंग ऐड हो गया और सेव कर दिया। अब क्या होगा कि मैं फ्रंट एंड पे जाता हूँ, सॉरी, तो ये मेरे पास टॉप नेविगेशन ट्रेनिंग का हो गया, इस पे मैंने क्लिक किया है, तो वो जो ट्रेनिंग का मैंने पेज बनाया था उसका कंटेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप एक पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपको असाइनमेंट है कि आप एक पेज क्रिएट करें और अपनी टॉप नेविगेशन में उसको ऐड करें। तो आपके पास इसके लिए 5 मिनट हैं, 5 मिनट लें और मुझे जो आपने अपना पेज बनाएँगे, उसका मुझे लिंक चैट में शेयर कर दें। जिस तरह अभी मैंने ये एक पेज बनाया है और इसका मैं लिंक चैट में शेयर कर दिया। सिमिलरली आपने एक पेज बनाना है, उसको टॉप नेविगेशन में ऐड करना है और उसका लिंक मुझे शेयर करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
हेलो, कैसा चल रहा है? आई एम वेटिंग फॉर योर लिंक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। टॉप नेविगेशन में आइटम को ऐड करने के बाद उसको लिंक कैसे करना है पेज के साथ, हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली है। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि किसी को उसके अ, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो थोड़ी बहुत बेसिक थीम ऑप्शंस होती हैं, उनमें क्या-क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है, साइट पे प्रेफरेंसेस की ऑप्शन होगी। ये प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक करना है आपने और यहाँ से आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आपने फेसबुक पिक्सेल इंस्टॉल करना है, गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल करना है, इस तरह की चीज़ों को इंस्टॉल करना है, तो ये वाला सेक्शन है जहाँ से आप कर पाते हैं। तो आपने अपने बैकएंड एडमिन पैनल में आना है, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है, प्रेफ़रेंसेस पे क्लिक करना है, तो ये आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें से होम टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। ये वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन होगी जो गूगल पे आपकी वेबसाइट को अगर कोई सर्च करता है, तो उसको ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी। तो ये आपने अच्छे से ऐसा लिखना है जिससे आपका जो एंड यूज़र है, जब गूगल पे अगर किसी तरीके से सर्च करता है, तो उसको समझ आ जाए कि व्हाट दिस वेबसाइट इज़ अबाउट। उसके बाद सोशल शेयरिंग होता है। सोशल शेयरिंग में क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक किसी फेसबुक पे या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करते हैं, तो होता क्या है कि उसके साथ एक इमेज और एक डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होती है, जब हम लिंक शेयर करते हैं। तो वो इमेज और डिस्क्रिप्शन टाइटल क्या नज़र आएगा, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से इमेज चेंज कर लें और वो इमेज चेंज होके वो जब लिंक शेयर करते हैं, तो वो वाली इमेज आएगी जब सोशल शेयरिंग करते हैं। और इसके बाद गूगल एनालिटिक्स का कोड आपको मिल जाता है, वो यहाँ पे आप पेस्ट करते हैं। फेसबुक पिक्सेल एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप एड्स जब रन करते हैं फेसबुक पे, तो उसके थ्रू पता चलता है कि कौन से लोग आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं। आपने उनको रीटारगेट करना है, उनको एड्स दिखानी है, तो पिक्सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने अपनी वेबसाइट पे पिक्सेल भी सेटअप करवा लेना है। तो पिक्सेल क्रिएट करवा के उसकी जो भी आईडी होती है वो यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देनी है और सेटअप पिक्सेल पे भी क्लिक करेंगे तो वो आपको उस प्रोसेस में ले जाएगा और पिक्सेल सेटअप हो जाएगा। ठीक है? और इसके बाद पासवर्ड प्रोटेक्शन अभी हमारे स्टोर जो हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, कोई भी फ्रंट एंड को आके देख नहीं सकता क्योंकि वेबसाइट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन समहाउ, तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो जिसके पास ये पासवर्ड होगा वही वेबसाइट विज़िट कर पाएगा। जब हम अपनी वेबसाइट को लाइव कर देंगे तो ये इसको अनचेक करेंगे तो ये पासवर्ड प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है? तो दीज़ आर सम ऑप्शंस इन प्रेफरेंसेस, तो ये आप आके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अपने स्टोर की लाज़मी आप टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन सेट कर दीजिएगा या मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं सेट करवा दूँगा। तो ये गूगल के ऊपर अच्छे से आती है। ऑलराइट? तो अभी हमने देख लिया है ऑलमोस्ट शॉपिफ़ाई को हमने ओवरव्यू कर लिया है और सेटिंग्स को भी मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। ये थोड़ी-सी ज़्यादा डिटेल की चीज़ें हैं, लेकिन समहाउ इसके साथ यू कैन प्ले विद। जनरल है, इसमें आप अपने स्टोर के बारे में इन्फॉर्मेशन डाल दें कि आपका स्टोर कहाँ-कहाँ पे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी स्टोर का नाम क्या है, डिटेल्स हैं, आपका एड्रेस वगैरह है, इस तरह की चीज़ें आप मैनेज कर लें। टाइम मैनेज कर लें कि किस टाइम ज़ोन को आपने फ़ॉलो करना है। तो कुछ सेटिंग्स हैं इधर, जो कि आप अपने स्टोर की मैनेज कर सकते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। तो इनको आपको चेंज करने की या करने की ऐसे ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपको जो ज़रूरत पड़ सकती है वो प्लान एंड परमिशंस की पड़ सकती है और इधर से आप ने जो क्रेडिट कार्ड लगाना है या जो करना है वो यहाँ से आके आपने करना है। सेटिंग्स में आके प्लान एंड परमिशन में आके अपग्रेड प्लान करना है और जो भी आपने प्लान अब लेना है वो यहाँ से ले लेंगे। अभी इन्होंने प्लान ले लिया हुआ है। इसके बाद आपने किसी को अपनी शॉपिफ़ाई की एक्सेस शेयर करनी है, अपने स्टाफ में किसी के साथ शेयर करनी है, तो आप यहाँ पे अपने स्टाफ के एक्सेस शेयर कर सकते हैं, उनका नाम डालें, उनका ईमेल डालें और उनको फुल परमिशन देनी है या पार्शियल परमिशन देनी है। फुल परमिशन में उनके पास हर चीज़ की डिटेल चली जाती है, ऑर्डर्स की कस्टमर्स की, जो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, उसकी भी एक्सेस हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने सिर्फ़ लिमिटेड एक्सेस शेयर करनी है, तो किस-किस चीज़ की एक्सेस शेयर करनी है, आप वो यहाँ से चेक चेक करके और उसके बाद सेंड इनवाइट करेंगे, उनको ईमेल चली जाएगी, वो ईमेल को विज़िट करके अकाउंट बना के लॉगिन करेंगे, तो आपके शॉपिफ़ाई की एक्सेस उन्हें मिल जाएगी।
तो ये भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है इस फीचर की कि आपने अपनी अकाउंट की एक्सेस किसी से शेयर करनी है, रादर दैन कि आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड उनसे शेयर करें, आप उनका एक स्टाफ मेंबर के तौर पे उनको ऐड करके एक्सेस शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट? तो ये सेटिंग्स में आ गया और यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क और फिर इसके बाद हम सेशन को क्लोजिंग की तरफ ले जाते हैं। एक्सक्यूज अब जैसे कि हमें एक एड्रेस दिया हुआ है ऑलरेडी शॉपिफाई की तरफ से, जैसे आपने बताया था कि उसके साथ में ना, जैसे फॉर एग्जांपल इट्स pomegranateseeds.com.pk शॉपिफाई का जो भी था, तो अगर मैं अपना डोमेन ऐड करती हूँ तो उसके कुड यू प्लीज एलेबोरेट, क्योंकि ये थोड़ा सा श्योर, मतलब मुझे समझ में नहीं आई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा होता क्या है कि शॉपिफ़ाई बेसिकली सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस है। शॉपिफ़ाई पे जो हम अकाउंट बनाते हैं, वो शॉपिफ़ाई पे हमारी वेबसाइट बन रही होती है, सारा कुछ क्योंकि वो मैनेज कर रहे होते हैं हमारे लिए। तो वो उनके उनके ऊपर हमने अकाउंट बनाया हुआ है। लेकिन एट द एंड हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल किसी से ऐसे शेयर नहीं करेंगे कि जिस तरह यूज़र नेम है और .myshopify.com ये यूआरएल हम अपने कस्टमर्स के साथ शेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस नहीं है। तो हम अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन बाय करते हैं। लेट्स से ectipakistan.org ये हमारी वेबसाइट का डोमेन है, एड्रेस है जो कि हम लोगों को बताते हैं, हमारी वेबसाइट के बारे में लोगों को बताते हैं, कार्ड्स पे प्रिंट करते हैं वेयरएवर। अब हम क्या चाहते हैं कि हम लोगों को ये यूआरएल शेयर नहीं करना चाहते, बल्कि हम अपने डोमेन का यूआरएल शेयर करना चाहते हैं। तो वो डोमेन को हमें पॉइंट करना पड़ेगा अपनी शॉपिफ़ाई एड्रेस की तरफ। तो वो डोमेन के रिगार्डिंग मतलब ये है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डोमेन को पॉइंट आउट करना है अपनी शॉपिफ़ाई स्टोर्स पे। ये सब की डोमेन्स हमने जो आपकी हैं, जिस तरह ECTI पाकिस्तान की वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी है। जैसे ही उसकी फाइनलाइज़ेशन करके हम डोमेन पॉइंटिंग को एक्टिवेट कर देंगे। वो डोमेन पॉइंट होके हमारी वेबसाइट शॉपिफ़ाई पे आएगा। जैसे ही फिर कोई ectipakistan.org ओपन करेगा, तो हमारी शॉपिफ़ाई की वेबसाइट ओपन होगी। फिर वो पूरा आपको शॉपिफ़ाई का यूआरएल शेयर नहीं करना पड़ेगा। ऑलराइट? तो उसके लिए आपका जो भी जहाँ से भी आपने डोमेन बाय किया है, वहाँ पे हमें कुछ रिकॉर्ड्स एंटर करने पड़ते हैं रीडायरेक्शन के लिए। उसके लिए ये थोड़ा-सा टेक्निकल काम है, तो वो टेक्निकल सपोर्ट आपको मिल जाएगी हमारी तरफ से और हम आपके डोमेन को पॉइंट्स कर देंगे आपकी शॉपिफ़ाई की तरफ और देन आपके वेबसाइट लाइव हो जाएगी जो नई बन गई है। ओके जी। एनी अदर क्वेश्चन? आप सबके पास डोमेन्स हैं ना अपनी वेबसाइट के? इसीलिए pakistan.org का मुझे पता है। बाकी वेबसाइट्स के भी डोमेन हैं, बाय किए हुए हैं आप लोगों ने? ओके। तो अगर बाय नहीं किए हुए तो हम बाय भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और एक्जिस्टिंग डोमेन के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। तीनों ऑप्शंस हमारे पास होती हैं। तो मैं आई अज़्यूम कि सबने डोमेन बाय कर लिए हुए हैं, तो कनेक्ट एक्जिस्टिंग में करके आपने अपना डोमेन का नाम बताना होता है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं तो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शंस को ये टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो डोमेन मैनेज कर रहे होते हैं, ये उनको आपने दे देनी है या डोमेन की एक्सेस आप मुझे शेयर करवा दें और ये सारी इंस्ट्रक्शंस को मैं इम्प्लीमेंट करके आपकी वेबसाइट को लाइव कर दूँगा। एक चीज मैं पूछ सकती हूँ, ये डोमेन आपने अभी कहा डोमेन जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, ये इसका क्या मतलब है? ट्रांसफ़र से मुराद ये है कि ये डोमेन शॉपिफ़ाई की तरफ आप ले आएँगे और फिर शॉपिफ़ाई उसको मैनेज करना स्टार्ट कर देगा। तो आपने जैसे डोमेन हो सकता है गोडैडी के साथ अगर डोमेन गोडैडी से मिलेगा ना, अगर मेरा ऑलरेडी एक उसके साथ है तो वो शॉपिफाई पे ट्रांसफर हो जाएगा? जी, हो जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं है शॉपिफ़ाई पे ट्रांसफ़र करने की, आपने जहाँ से खरीदा हुआ है वहीं पे रहने दें। गोडैडी से आपने बाय किया हुआ है, आप वहीं पे रहने दें। हम उसी को कनेक्ट कर सकते हैं शॉपिफ़ाई वेबसाइट के साथ, तो हमें ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है उस सिनेरियो में। लेकिन ट्रांसफ़र ओ, उस सिनेरियो में आप करना चाहें, लेट्स से आप गोडैडी से आप चाह रहे हैं कि मैंने एक ही जगह पे सारी चीज़ें मैनेज करनी है, गोडैडी पे मेरा डोमेन है, होस्टिंग मेरी शॉपिफ़ाई पे है और मैंने शॉपिफ़ाई के साथ ही कंटिन्यू करना है, तो आप शॉपिफ़ाई पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आपका जहाँ पे भी डोमेन है वहीं पे रहने दें। ट्रांसफ़र की कॉस्ट होती है, वो लाइक $15 के आस-पास होगी, तो आप वो कॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके जहाँ से डोमेन है वहीं पे आप रखें। जस्ट आप कनेक्ट कर लेंगे हम उन डोमेन्स को। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? ये डोमेन से रिलेटेड एक और मुझे सवाल पूछना था, क्योंकि आप बता रहे थे ये थोड़ा टेक्निकल काम है, तो ये मतलब
आप लोग हमें करके दे देंगे? जी, जी, बिल्कुल। आप मुझे अपनी डोमेन के जहाँ से आपने बाय किया हुआ है उसका यूज़र नेम पासवर्ड शेयर करवा देंगे। वहाँ पे जाके जी। हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन सारी कर देंगे और फिर आपकी अ, शॉपिफ़ाई स्टोर के साथ आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा। फिर जब भी आप अपने डोमेन को टाइप करेंगे, आपकी शॉपिफ़ाई की वेबसाइट चल रही होगी। तो फिर मैं आपको ये ईमेल कर सकती हूँ? किस जी, तरह से मुझे मैं आप आपको आप आप शेयर मुझे करूँ? ईमेल कर दें ये अपने डोमेन फिर का काइंडली नाम, आप अपना ईमेल एड्रेस वगैरह शेयर मैं कर आपको लीजिएगा। चैट में कर देता हूँ। थैंक यू। मैंने चैट में शेयर कर दिया। सारे अपने डोमेन का यूज़र नेम, पासवर्ड जहाँ से भी बाय किया हुआ है, लेट्स से गोडैडी से बाय किया हुआ है, गोडैडी का लिंक, यूज़र नेम और पासवर्ड मुझसे शेयर कर दें। जैसे ही हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट सबकी वेबसाइट्स रेडी हैं, उसमें फाइन ट्यूनिंग और फीडबैक है वो करके देन हम अपनी वेबसाइट्स को लाइव करेंगे। तो डोमेन ट्रांसफ़र यानी रीडायरेक्शन इसे कहते हैं। डोमेन रीडायरेक्शन जो है अप टू 48 आवर्स ले लेती है। तो अगर हम इसको आज इनिशिएट करते हैं प्रोसेस को, तो ये कल तक हमारा डोमेन पॉइंट हो जाएगा शॉपिफ़ाई के ऊपर। तो फिर हमारी वेबसाइट सबकी चल जाएँगी। तो आज अगर आप मुझे ईमेल कर देते हैं सारे अपने डोमेन की क्रेडेंशियल्स, तो मैं इसको आज ही करवा के तो कल तक हमारी वेबसाइट्स लाइव हो जाएँगी। तो हम चाह रहे हैं कि न्यू ईयर पे आपकी सबकी वेबसाइट चल रही हों। एनी अदर क्वेश्चन? I think you have our previous website link. It's indusheritagetrust.com. We already यस, दिस इज़ पॉसिबल। उसके सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, हम सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से shop.ist.org, ठीक है? तो जो भी आपकी शॉप पे एक्सपीरियंस को काउंट करना चाह रहा है, उसके लिए हम सब डोमेन बना लेते हैं। तो उसके लिए भी आपकी डोमेन की सेस मेरे पास आएगी, तो मैं एक सब डोमेन क्रिएट करूँगा। टेक्निकलिटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व। सब डोमेन क्रिएट करने के बाद आपकी जो एक्जिस्टिंग वेबसाइट है, उसके अंदर आप एक टॉप नेविगेशन में शॉप का बटन ऐड करवा लें। और उसके ऊपर वो वाला लिंक हम ऐड कर देंगे, तो आपकी एग्ज़िस्टिंग वेबसाइट चलती रहेगी और शॉप की वेबसाइट आपके सब डोमेन पे आ जाएगी। तो वो हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है? ओके ये आप कर देंगे इसको जी, जी, या हमको ही बिल्कुल करना होगा? हम आपको ये सपोर्ट दे देंगे फिर और मैंने इसके लिए अपना प्रीवियस वेबसाइट का लिंक शेयर किया चैट में। लेट मी चेक। ओके, Hamad, I'll share the website address with you as well. But श्योर। Indus Heritage, any other question, any other comment maybe? No, all other things are very clear. Thank you very It much. was a great learning session. Thank you very much. Artisan links, Ms. Tyra, any suggestion, any question that you might have till now? No questions, no suggestion. It was a really interesting session and I've learned a lot. I'm sorry I couldn't follow everything due to I wasn't really prepared with the website, but thank you so much. And I would really like to have the recording so I can go over this again. Thank you. Most welcome, ma'am. So pomegranate seeds, any suggestion, any question that you have till now? No, no questions. Everything is very much clear. Thank you so much. That's it. All good from our side. So Hamad, we'll we'll take it as a compliment. These are 5 stars to you, maybe. थैंक यू सो वेरी So मच। yeah, so we are ending it on a very high note, and thank you very much for your time, and thank you everyone, and a very good evening to all of you. Or you exactly know my email address as well, Hamad. Just to be on the safe side, can you please add your email address in the chat box for any queries that they might have, and then we'll call it a day. श्योर। There we go. So you have the email address and there we go. So any questions, you can also mark me in because Hamad again is a very busy person. I need to push him sometimes whatsoever. So this is how it is. So thank you very much, everyone. Have a nice day. Have a nice evening. अल्लाह हाफ़िज़। Khuda Hafiz.